ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اس وقت 57 سال کی عمر میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی وہ وقت یاد کر رہی ہوں جب اپنے بچپن میں آنکھ مچولی کھیلا کرتی تھی، جیسے سب بچے بچیاں کھیلتے ہیں۔ مگر مجھے کیا پتا تھا یہ ایک چھوٹا سا کھیل میری زندگی کو ہی بدل دے گا، بلکہ برباد کر دے گا، اور پھر یادیں جیسے بارش کا پانی بن کر میرے دل پر برسنے لگیں۔ مجھے یاد ہے جب گاؤں کے کنویں پر پانی بھرتے ہوئے میری اماں نے اپنی سہیلی سے کہا تھا کہ میں جلدی اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گی، بس اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ نظر میں رکھنا۔ اور میں جو کنویں کے قریب ہی اپنی ہم عمر سہیلیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی، اماں کی بات کانوں میں پڑتے ہی رک گئی۔ آنکھوں سے پٹی اتار کے اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو میں نے اپنی گڑیا کی شادی اپنی سہیلی کے گڈے سے کی تھی، تو اب کیا اماں میری شادی اتنی جلدی کر دیں گی؟ میں اس وقت صرف 10 سال کی تو تھی۔ مجھے تو شادی کا مطلب بھی پوری طرح نہیں معلوم تھا۔ ہاں، بس یہ پتا تھا کہ شادی میں لڑکی دلہن بنتی ہے اور اسے ڈھیر سارے نئے کپڑے، جوتے اور زیور ملتے ہیں۔ یہ سب سوچ کر میں خوش ہو گئی اور اس دن سے اپنی شادی کے سپنے دیکھنے لگی۔ میرا نام نجمہ تھا اور سب مجھے پیار سے نجو نجو کہہ کر پکارتے تھے۔ گاؤں میں جیسے میری اماں کی بے شمار سہیلیاں تھیں، ویسے ہی میری بھی بہت ساری سہیلیاں تھیں جن کے ساتھ میں کئی کھیل کھیلتی۔ آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک دوسرے کو ڈھونڈنا اور پکڑے جانے پر باری دینا ہم سہیلیوں کا من پسند کھیل تھا۔ ہم اکثر کنویں کے آس پاس یا اپنے محلے میں ہی کھیلا کرتی تھیں۔ ہمارا گھر گاؤں کے چند ایک پکے گھروں میں سے ایک تھا، جسے ابا نے بڑی محنت سے پکا کیا تھا۔ ابا کوئی زیادہ کمانے والا انسان نہیں تھا، بلکہ ایک عام سا مزدور تھا۔ روز صبح سر پہ چھوٹی سی پگ باندھ کر گاؤں کے بازار میں جا کر بیٹھ جاتے، جہاں اور بھی کافی مزدور مستری بیٹھ کر کام کا انتظار کیا کرتے تھے۔ ابا کو بھی وہاں کوئی نہ کوئی کام مل جاتا۔ کسی دن اچھی دھیاڑی لگتی تو کسی دن بنا دھیاڑی کے ہی انتظار کر کر کے ابا گھر لوٹ آتے۔ گھر میں اماں کا راج چلتا تھا۔ ابا سارا دن یا تو کام پر رہتے یا پھر گھر آنے کے بعد گلی میں دروازے کے پاس چارپائی ڈال کے وہاں بیٹھے رہتے۔ گاؤں کے مختلف لوگ آتے جاتے گزرتے ہوئے ابا کے پاس بیٹھ جاتے اور کچھ نہ کچھ باتیں چلتی رہتی۔ ابا تو سوتے بھی وہیں دروازے کے باہر والی چارپائی پر تھے۔ گھر میں اماں کے ساتھ میں اور میرا چھوٹا بھائی ہی سویا کرتے تھے۔ جب میں 16 سال کی ہوئی تو اماں نے سچ میں میرے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ اماں کہتی تھیں کہ جوان بیٹی جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائے اچھا ہے۔ ابا کی تو ویسے بھی اماں کے سامنے ایک نہیں چلتی تھی۔ جب اماں نے میرے رشتے کا گاؤں کی عورتوں کو کہا تو آئے دن کوئی نہ کوئی عورت اپنے دور پرے یا کسی قریبی کا رشتہ بتانے آ جاتی۔ مگر اماں کی کچھ شرطیں تھیں کہ بیٹی شہر میں بیاہوں گی اور اس گھر میں بیٹی دوں گی جہاں ساس سسر نہ ہوں۔ شہر والی بات سن کر سب کہتے کہ گاؤں میں ساری زندگی کاٹ لی اور اب شہر سے رشتے کی امید لگا کر لڑکی کو گھر ہی بٹھائے رکھو گی کیا؟ مگر اماں کسی کو باتوں میں نہ آتی اور اپنی بات پر پکی رہتی۔ اماں نے تو مجھے اسکول کا منہ تک نہیں دیکھنے دیا تھا کہ لڑکی نے پڑھ لکھ کر بھی گھر بار ہی سنبھالنا ہے تو پھر فائدہ اتنا وقت ضائع کرنے کا۔ مجھے گھرداری سکھانے میں اماں کا دھیان لگا رہتا۔ اب تو میرا کھیلنا بھی بند ہو چکا تھا، بس سارا وقت کھانا پکانا، سلائی کڑھائی اور جانے کیا کیا سیکھنے میں گزر جاتا۔ میری کئی سہیلیاں گاؤں کے اسکول میں 8 جماعتیں پاس کر چکی تھیں۔ کچھ سلائی سینٹر جاتی اور کوئی تو کمپیوٹر تک سیکھنے جایا کرتی تھی۔ سال پہلے ہی گاؤں میں کمپیوٹر سینٹر کھلا تھا جہاں کافی بچے بھی جایا کرتے تھے۔ میری اماں نے میرے بھائی کو بھی وہاں داخل کروا دیا۔ وہ اسکول تو پہلے ہی جاتا تھا، اب کمپیوٹر بھی سیکھنے لگا اور میرے پاس صرف چولہا چمٹا اور سوئی دھاگا ہی رہ گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مزید 2 سال گزر گئے۔ جب میں 18 کی ہوئی تو گاؤں کی ڈسپینسری میں کام کرنے والی ایک نرس کے ذریعے میرا ایک رشتہ آیا۔ وہ نرس میری اماں کی دوست تھی۔ اس نے جس کا رشتہ بتایا وہ شہر میں اس کا جاننے والا تھا اور وہ بھی ایک ڈسپینسری میں کمپاؤنڈر کا کام کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی نہیں تھے۔ اماں کو یہ رشتہ بہت پسند آیا۔ جو وہ چاہتی تھیں وہ تمام خوبیاں تو تھیں اس رشتے میں۔ ماں باپ تھے نہ کوئی اور آگے پیچھے، شہر میں نوکری اور گھر، بس اماں نے فوراً رشتہ منظور کر لیا۔ ابا نے اماں سے کہا کہ کچھ چھان بین اور سوچنے کا وقت لو، مگر اماں نے ابا کو چپ کروا کے بٹھا دیا کہ آپ کو کیا پتا، بیٹی کا رشتہ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اماں کا خیال تھا کہ سسرال نہ ہو تو بیٹی کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور اکیلے گھر میں رہ کر عیش کرے گی۔ میں تو پہلے ہی بچپن سے اپنی شادی کا ذکر سن کر شادی کا شوق دل میں پالے بیٹھی تھی۔
और अब अम्मा के बकौल इतना अच्छा रिश्ता आया था, ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई। अम्मा ने मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी, जबकि अभी मंगनी भी नहीं हुई थी। मंगनी के लिए लड़के वालों की तरफ से अम्मा की वही सहेली आई जो गांव की डिस्पेंसरी में नर्स थी। मंगनी के सामान में एक सोने की अंगूठी, 4 जोड़े और 20,000 रुपये नकद मिले, जिसकी वजह से अम्मा को अपनी पसंद पर और गरूर हो गया कि उन्होंने बेटी के लिए इतना अच्छा बर ढूंढ लिया था। शादी 1 महीने बाद होना करार पाई थी। इस 1 महीने में अम्मा ने मेरे लिए बहुत सारे नए कपड़े बनवाए और कुछ जेवर भी, मगर मेरे होने वाले दुल्हा ने अम्मा को पैगाम भिजवाया कि वो किसी किस्म का जहेज मत खरीदें। जब मैं ब्याह कर शहर जाऊंगी तो वो मेरी पसंद से सारा सामान मुझे ले देंगे। अम्मा को और क्या चाहिए था, वो तो पहले ही बेटियों पर खर्चने को हराम समझती थी, अब तो और खुश हो गई। और फिर मुझे भी अच्छी तरह समझाना शुरू कर दिया कि जब ब्याह कर जाओ तो अपनी पसंद से खूब खरीदारी करना, फर्नीचर भी नया लेना और सोने के जेवरात लाजमी बनवाना। मैं अम्मा की सारी बातें अपने पल्लू में बांधती जा रही थी। मैंने सारी ज़िंदगी अम्मा को घर और अब्बा पर राज करते देखा था। सारी ज़िंदगी उसे अच्छे से अच्छा पहनते और बरतते हुए देखा था। जाहिर है माँ से जो सीख मिली थी वही सब मेरे दिल और दिमाग में घर करता जा रहा था। फिर 1 माह भी गुजर गया और मेरी शादी का दिन आ गया। बारात में सारे मर्द ही मर्द थे और सिर्फ वही एक औरत थी जो नर्स और अम्मी की सहेली थी। बरी में भी अच्छे खासे जोड़े और जेवरात लाए थे वो लोग, और हक महर भी अम्मा ने एक मोटी रकम लिखवाई थी। और तो और जो घर था वो भी मेरे नाम करवाने की शर्त रखी, जिसे वो मंगनी के वक्त ही मान चुके थे। मुझे इस वक्त अपनी माँ सारी दुनिया से ज़्यादा समझदार और अपनी खैर ख्वाह लग रही थी कि मेरे मुस्तकबिल के लिए अम्मा ने क्या कुछ इंतज़ामात कर दिए थे। खैर, निकाह हुआ। खाना खाने के बाद उन लोगों ने रुखसती मांगी और अम्मा अब्बा ने मुझे रुखसत कर दिया। मैं पहली बार शहर जा रही थी। मेरे दिल में शादीशुदा ज़िंदगी के आगाज़ से कहीं ज़्यादा शहर में घर और खूब सारी शॉपिंग का लालच भरा हुआ था। मुझे इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था कि मेरा शौहर दिखने में कैसा है और उसकी उम्र क्या है, या वो महज डिस्पेंसरी पर नौकरी करके लाखों रुपए मुझ पर कैसे उड़ा चुका है। मेरे अंदर इन सब चीज़ों को सोचने और समझने का शऊर डाला ही नहीं गया था। जब मैं अपने शौहर के साथ कार में अपने घर पहुंची तो घर में इस्तकबाल करने वाला भी कोई नहीं था, मगर घर के अंदर से तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक चलने की आवाज़ आ रही थी। मेरे शौहर का नाम माजिद था और वही मुझे कार से उतार कर अंदर ले गए। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था मगर खूबसूरत बना हुआ था। माजिद ने दुल्हन बने ही मुझे सारा घर दिखाया और फिर अपने कमरे में जाने से पहले एक दूसरे कमरे में लेकर गए। जब उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान रह गई। वहाँ एक 13-14 साल का लड़का पैंट शर्ट पहने टीवी देख रहा था। उसका अंदाज लाउबाली सा था। शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खुले हुए थे। गले में चेन और कलाई में ब्रेसलेट पहना हुआ था। बाल बड़े बड़े शानों तक आ रहे थे और उसने ही तेज़ आवाज़ में टीवी पर गाने चला रखे थे। हमें देखकर वो टीवी बंद करके फ़ौरन खड़ा हो गया और भागकर माजिद के गले लग गया। माजिद ने उसके माथे पर प्यार किया और उसके बाद वो दोनों मेरी जाने मुतवज्जो हुए। माजिद ने बताया कि मेरा नाम नजमा है और मुझे कहने लगे कि ये मेरा छोटा भाई साजिद है। साजिद 14 साल का था और महसूस हो रहा था कि वो अपने बड़े भाई का किस कदर लाडला है, मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अगर माजिद का भाई था तो शादी में क्यों नहीं आया। मेरे सवाल पूछने से पहले ही माजिद ने बताया कि साजिद को लोगों की भीड़ में उलझन होती है और वो ज़्यादा रश में जाने की वजह से बीमार पड़ जाता है। मेरी समझ में तो ये बात बिल्कुल नहीं आई कि कोई इंसान लोगों से मिलने जुलने की वजह से बीमार कैसे पड़ सकता था। मैं इस बात पर खामोश रही और फिर माजिद ने साजिद से खाने का पूछा और मुझे मेरे कमरे में ले गए। उसके बाद हम दोनों ने अपने कमरे में और साजिद ने अपने कमरे में पिज़्ज़ा खाया। मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद था और शादी की पहली रात ही मेरा शौहर मेरी पसंद का पूछकर खाना मंगवा लेगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। दूसरे दिन माजिद ने मुझे कहा कि आज तुम्हारी अम्मा से मिलाते हैं, फिर कल तुम्हें बाजार लेकर चलूँगा। वादे के मुताबिक नया फर्नीचर और ज़रूरत का बाकी सामान खरीद लेना। मैं उनकी बात सुनकर बड़ी खुश हुई और फिर खूब तैयार श्यार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर जब मैके पहुंची तो पूरा गांव मेरी सज धज पर हैरान हो रहा था। जब से मेरी शादी हुई थी, शादी के दिन ही गांव में खुसर फुसर हो रही थी, मगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरा शौहर उम्र में मुझसे दुगना था या वो काला था और गंजा भी था। मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता था। मेरे पास कार थी, शहर में अपना घर था और एक दिन मैं जैसे ही माजिद ने मुझे रानी बना दिया था, ये सब मेरे लिए बेहद अहमियत रखता था। अम्मा भी यही कहती थी कि गांव वाले जलते हैं और इसीलिए बातें बनाते हैं।
अम्मा के पास जाकर मैंने अम्मा को अपने देवर के बारे में बताया तो अम्मा भी थोड़ी हैरान हुई, मगर फिर कहने लगी कि वो तो बच्चा है, उसे प्यार से अपनी मुट्ठी में कर लेना। लड़कों की कोई फिक्र नहीं होती, वो कौन सा साजिशें करते हैं। मैंने भी अम्मा की हाँ में हाँ मिलाई, क्योंकि साजिद तो वैसे भी ना किसी चीज़ में मदाखलत करता था और ना ही मेरा कोई इरादा था उसे सर पर चढ़ाने का। वो पूरा दिन मैं और माजिद गांव में अम्मा अब्बा के पास रुके। आने से पहले हमने बाजार से अम्मा अब्बा और मेरे छोटे भाई के लिए कुछ तोहफे ले लिए थे। पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। अम्मा ने ज़िंदगी में पहली बार मेरे लिए खाने पीने का इतना एहतमाम किया था। मुझे फ़ख्र हो रहा था कि मैं पैसे वाले शौहर की बीवी थी, जिसके पास दुनिया की हर सहूलत और आसाइश थी। तभी तो लोग उसके आगे पीछे फिरते थे। शाम को अंधेरा होने से पहले हम शहर को लौट गए और घर जाने से पहले माजिद ने मुझे आइसक्रीम खिलाई और मेरे लिए गजरे भी खरीदे। घर पहुंचे तो साजिद हस्बे मामूल अपने कमरे में बंद था। दूसरे दिन हम बाजार गए और मैंने खूब सारी शॉपिंग की। अपने कमरे के लिए नया फर्नीचर लिया और कपड़े लिए, जूते और जेवरात भी खरीदे। मैंने अम्मा अब्बा के लिए भी कपड़े खरीदे और अपने भाई के लिए एक मोबाइल लिया। माजिद ने मुझे कोई भी चीज़ लेने से नहीं रोका, बल्कि मुझे नया फ़ोन भी लेकर दिया और उन्होंने अपने छोटे भाई साजिद के लिए भी नए मॉडल का मोबाइल ख़रीदा। घर जाकर साजिद को जब नया फ़ोन दिया तो वो बड़ा खुश हुआ और उसने मेरा भी शुक्रिया अदा किया। उसके बाद हमने खाना खाया और अपने कमरे में आ गए। मैंने अपने शौहर से पूछा कि आप डिस्पेंसरी पर मुलाजमत करके इतना कैसे कमा लेते हैं? तो तब उन्होंने मुझे बताया कि डिस्पेंसरी पर मुलाजमत के साथ साथ उन्होंने एक साइड बिजनेस में अपने दोस्त के साथ हिस्सा डाल रखा है। मैं ये सुनकर मुतमईन हो गई कि अम्मा ने वाकई मेरी शादी बेहतरीन जगह पर की है। कुछ दिन में ज़िंदगी मामूल पर आ गई। माजिद अपनी मुलाजमत और बिजनेस देखने में मसरूफ़ हो गए। घर में मुलाजमा काम के लिए आती थी। मैं सारा दिन खाने पीने, सोने या सजने संवरने में गुजार देती। मेरे देवर साजिद के वही शौक थे, बाहर फिरना और फिर कमरे में बंद हो जाना। बस उसकी एक आदत से मैं तंग थी कि वो म्यूज़िक बहुत तेज़ आवाज़ में सुनता था और अपने बड़े भाई से हर बात मनवाने का आदी था। माजिद भी उसकी हर बात को हुक्म समझ कर मानते थे। जाने क्यों, वो इस बात से डरते थे कि वो ज़िद करेगा तो बीमार हो जाएगा। मुझे ये मंतक समझ नहीं आती थी। बहरहाल मैं फ़िलहाल अपने देवर को बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। और फिर एक दिन मेरे देवर ने नया शूशा छोड़ दिया। हुआ कुछ यूँ कि उसने टीवी पर जाने कौन सा बेहुदा प्रोग्राम देख लिया था, जिसमें एक लड़का आंखों पर पट्टी बांधकर अपने लिए लड़की पसंद करता है और फिर उससे शादी कर लेता है। मेरे देवर साजिद ने ये ज़िद पकड़ ली कि वो भी ऐसे ही अपने लिए लड़की पसंद करेगा, मगर ऐसा कैसे हो सकता था? मेरे शौहर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। फिर उसने ज़िद में आकर खाना पीना छोड़ दिया और वो शदीद बुखार में मुब्तला हो गया। मेरे शौहर के तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो दिन रात अपने भाई के कमरे में उसकी तीमारदारी पर लगे रहते और मुझे भी अलग घन चक्कर बना रखा हुआ था। कभी उसके लिए खाने को कुछ बनाती तो कभी कुछ। शादी के 1 महीने बाद ही मेरा हुलिया मासियों वाला रहने लग गया और फिर मेरे देवर की बीमारी के 10 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसका ठीक होना सबसे ज़्यादा मेरे लिए सुकून का सबब था, क्योंकि मैं तो उसकी खिदमतें कर कर के तंग आ चुकी थी। मेरे शौहर ने इसकी वो ज़िद मान ली थी और पता नहीं कैसे करके उन्होंने घर में चंद लड़कियों को बुलवाया जो देखने में बहुत खूबसूरत थीं। वो लड़कियां कहीं से भी किरदार की हल्की या ऐसी वैसी नहीं लगती थीं, बल्कि उनमें से कुछ गरीब घरानों की तो कुछ यतीम खानों से बुलवाई जा रही थी। मेरा देवर आंखों पर पट्टी बांधकर जिसकी तरफ इशारा करता वो लड़की शादी के लिए रजामंद हो जाती। फिर उससे मंगनी की बात चल रही होती, मगर मेरा देवर इनकार कर देता और फिर से 3-4 नई लड़कियां घर में आ जाती। ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा। ये सब मेरे लिए बड़ा हैरान कर देने वाला मामला था कि आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है। जब वो कमरे में आंखों पर पट्टी बांधे ये खेल खेलता तो उस वक्त मेरा कमरे में जाना बंद था। कमरे में मेरे शौहर और डिस्पेंसरी की एक नर्स मौजूद रहते और फिर मेरा देवर लड़की पर हाथ रखता और वो शादी के लिए हाँ कर देती, मगर फिर मेरा देवर इनकार कर देता। मैं भी ये सब देखना चाहती थी, मगर मेरा शौहर मुझे कमरे में जाने की इजाज़त नहीं देता था। आखिर एक दिन जब मेरे शौहर अपनी जॉब पर गए हुए थे और घर में मेरा देवर मौजूद था, तो मैं उसके कमरे में गई और उसको कहने लगी कि आंखों पर पट्टी बांधकर कैसे आंख मचोली खेलते हो, चलो आओ हम दोनों आंख मचोली खेलते हैं। वो फ़ौरन मान गया और फिर हम बाहर सहन में आ गए। मैंने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर हम दोनों आंख मचोली खेलने लगे। खेलते खेलते मुझे मेरा बचपन और गाँव को वह कुआं याद आ गया, जहाँ मैं और मेरी सहेलियाँ बड़े शौक से आंख मचोली खेला करती थीं। हम कुछ देर खेलते रहे, कभी वो बारी देता तो कभी मैं।
हम दोनों बड़े खुश हुए। वो तो शायद ज़िंदगी में पहली बार ये खेल खेला था, इसलिए उसको भी बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद उसने अपने भाई से शादी की ज़िद बंद कर दी और वो मेरे साथ बातें करता और खेलने का कहने लगा। मैं समझ गई थी कि वो बचपन से तन्हाई का शिकार है, इसलिए ऐसे ज़िद करने लग जाता था। मुझसे 5 साल छोटा था, मगर अब मुझे एहसास होने लगा था कि वो तो बिल्कुल बच्चों जैसा मासूम था। उसने कुछ दिन में अपने बाल कटवा लिए और तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुनना बंद कर दिया, और अब वो हमारे साथ उठने बैठने लगा था। मेरे शौहर ने उसमें आने वाली इन बड़ी तब्दीलियों को महसूस किया और मुझसे वजह पूछी, तो मैंने बताया कि अब हमारी दोस्ती हो गई है। ये सुनकर मेरे शौहर खुश हुए, मगर मैंने उनको आंख मचोली वाली बात नहीं बताई थी कि हम रोज़ खेलते थे। मैंने तो यूं ही इस बात का जिक्र नहीं किया, मगर मुझे क्या मालूम था कि मुझ पर क्या क़यामत टूटने वाली थी। फिर कुछ दिन गुजर गए। मेरे शौहर अपने भाई की तरफ से बेफिक्र होकर अपने कामों में मसरूफ़ हो गए, और यहाँ घर में मुलाजमा के जाने के बाद हम देवर भाभी आंख मचोली खेला करते। ये हमारा रोज़ का मामूल बन गया था। मेरी अम्मा ने जो कामों का बोझ छोटी सी उम्र में मुझ पर डाला था, उसकी वजह से मेरा बचपन मेरे अंदर ही दम तोड़ चुका था। और अब माजिद की दोस्ती और उसके साथ हंसी मजाक और आंख मचोली जैसे खेल ने मेरे अंदर भी एक बच्चा जगा दिया, जो बाकी हर खौफ और फिक्र से आज़ाद अपनी ज़िंदगी में मगन था। मगर एक दिन वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उस दिन मुलाजमा काम करके घर से गई तो उसके जाने के बाद मैं और मेरा देवर आंख मचोली खेल रहे थे। देवर की आंखों पर पट्टी बंधी थी। वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था और मैं उसे इधर उधर से आवाज़ें लगाती, उसे कभी सर पर तो कभी कंधे पर छेड़ रही थी कि अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये तो हमारे खेल का हिस्सा था। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो हम हंसने लगे, और उसी वक्त बैरूनी दरवाज़ा खुला और मेरे शौहर घर में दाखिल हुए। ये मंजर देखते ही उनका पारा हाई हो गया और उन्होंने आओ देखा न ताओ और सीधा जाकर अपने भाई को मारना शुरू कर दिया और कहा कि बेगैरत आदमी अब अपनी भाभी को भी पट्टी बांधकर शादी के लिए पसंद कर रहा है। ये सुनकर मेरा दिमाग ही हिल गया और मेरा देवर भी हैरत से अपने भाई को देखने लग गया। इससे पहले कि हम दोनों में से कोई कुछ कहता, मेरे शौहर ने एक और थप्पड़ अपने भाई को दे मारा और वह बेचारा रोता हुआ कमरे की तरफ भाग गया। उसके बाद मेरे शौहर ने मेरा हाथ थामा और मुझे कमरे में ले जाकर बहुत बातें सुनाई। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैं उनको बताना चाहती थी कि वो मेरे लिए छोटे भाई जैसा है और हम दोनों सिर्फ खेल रहे थे, मगर मेरे शौहर मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार न थे और फिर मुझे रोता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद आए और मुझे तैयार होने को कहा और मुझे मेरी अम्मा के घर छोड़कर खुद पता नहीं कहाँ चले गए। अम्मा लाख पूछती रहीं, मगर मेरे पास अम्मा को बताने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अम्मा अब्बा से कहा कि वो कहीं काम से जा रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ छोड़ गए। एक छोटी सी गलतफहमी और देवर से हंसी मजाक ने मेरी ज़िंदगी में मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा किया था, मैं खुद भी नहीं जानती थी। मगर अब मुझे समझ आ रहा था कि रिश्तों की हदूद किस लिए कायम की गई हैं और कैसे अपने रिश्तों में एतमाद बहाल रखा जा सकता है। मगर अब मैं करती भी तो क्या करती। मैं बस रोज़ अपने शौहर को फ़ोन करती रही, मगर उन्होंने मेरा एक भी फ़ोन रिसीव ना किया और फिर ऐसे ही 1 महीना गुजर गया। फिर एक दिन अम्मा को मेरे शौहर का फ़ोन आया कि वो मुझे लेने आ रहे हैं। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, मगर मैं परेशान भी थी कि जाने इस 1 महीने में मेरे देवर के साथ उन्होंने क्या क्या किया होगा और अब कैसे वो मुझे लेने आ रहे थे। फिर दूसरे दिन माजिद मुझे लेने आ गए। वो बिल्कुल खामोश थे और रास्ते में भी मुझसे कोई बात न की। मैं भी कुछ पूछने की हिम्मत न कर सकी। जब घर पहुंची तो घर खाली था। वहाँ मेरा देवर साजिद मौजूद नहीं था। मैं अपने कमरे में चली गई और फिर रात को मुझे माजिद ने बताया कि तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद साजिद ने मुझे सारी बात रो रो कर बताई, तो मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मैंने साजिद से भी माफ़ी मांगी और तुमसे भी माफ़ी मांगता हूँ। मैंने फ़ौरन अपने शौहर के जुड़े हाथ थाम लिए और साजिद के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, तो मेरे शौहर ने बताया कि वो तुम्हारा सामना करने में शर्म महसूस कर रहा था, इसीलिए उसे हॉस्टल छोड़ दिया है। वो वहीं रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगा। फिर कई साल तक मैंने साजिद को नहीं देखा। हाँ, कभी कभी फ़ोन पर बात होने लगी। अब वो मुझे बाजी कहता था और फिर ऐसे ही 6 साल गुजर गए। आज उम्र ने इस हिस्से में जब मैं अपने देवर और अपने बच्चों को भी ब्याह चुकी हूँ, आज भी साजिद मुझसे आंख नहीं मिला पाता। वो अपने बीवी बच्चों के साथ अलग घर में रहता है और मेरे बेटे के बच्चे मेरे घर की रौनक हैं। इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज भी जब आंख मचोली का वो खेल याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है।
मैं अब तक अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों को भी रिश्तों के तकद्दुस और एहतराम का सबक देती आई हूँ, और जब तक जिंदा हूँ रिश्तों का एहतराम करती रहूँगी, क्योंकि ये ज़िंदगी में बहुत अहम है, वरना ज़िंदगियाँ तबाह भी हो सकती हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।